Greeting student. In my previous video for relation and function of 12th class, you have understand about your previous knowledge and reminder it. For the relation, types of relation and four types of relation, and numbers also, sets, ordered pair and Cartesian product. Now for my second video of part 2 of relation and function, you will also watching it and share and subscribe. Now in previous video we have understood about four types of relation. First is empty relation, second is universal relation, third is identity relation and inverse relation. Now for 12th class we will going the reflexive relation, symmetric relation, transitive relation, and now lastly equivalent relation. So now firstly we will discuss about the reflexive relation. If we have given a set A, and element of set A belongs to A. A is a small a is a element of set A. A is belongs to A. Then all A belongs to A. A belongs to A dash A means same element should be present in the relation. It means if we have an element 1, so then 1, 1 belongs to R. It means all 2, 2, 3, 3, 4, 4 belongs to relation of the set A. It is the condition of reflexive. मीन्स रिफ्लेक्सिव का मतलब कि अगर हमारे पास किसी भी सेट का एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के सेम इमेज का सेम वही हमारे पास उसके रिलेशन में होना चाहिए, तभी जाके हम उसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे इस पर, बिकॉज इन अ मैथमेटिक्स विदाउट एग्जाम्पल वी कांट अंडरस्टैंड अबाउट द डिफाइन. तो नो प्रॉब्लम. सेकेंड सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि इफ सेट वही हमारे पास ये है A and B belongs to A. A is a non empty set. It is a condition कि वो empty set नहीं होना चाहिए. नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए बल्कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए. तो इफ A और B दो एलिमेंट हमने लिए उसमें से A and B belongs to R, then it reverse B and A belongs to R. It is a condition of the symmetry. अगर A और B 1 और 2 belongs to R कर रहे हैं तो 2, 1 belongs to R also, तभी जाके वो सिमेट्रिक कर रहे हैं. मीन्स A and B belongs to R, then B, A belongs to R also. मीन्स एक वन ईच अदर का रेसिप्रोकल आप कह सकते हो इसको, तो ठीक उल्टे होने चाहिए कि अगर A और B belongs to R कर रहा है तो B and A also belongs to R, then we can say this type of relation is called symmetric relation. तीसरा आता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन. इसमें भी क्या करते हैं कि हमको थ्री एलिमेंट्स वी विल टेक द 3 एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट, देन द कंडीशन फॉर द ट्रांजिटिव इज A and B relation, the element A and B belongs to R and B and C belongs to R also, then A and C belongs to R. It is a must condition. Then we can, this type of set is called transitive relation. अब थोड़ा एक्सप्लेन हिंदी में करता हूँ. अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हमने लिए, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 लिए, तो ये कंडीशन फॉलो करें. A, B belongs to R, B, C belongs to R, then B जो लास्ट बीच वाले को कट करके हमारे पास A और C ये भी क्या होना चाहिए, belongs to R होना चाहिए, मतलब उस रिलेशन में होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन.
इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन में एक पॉइंट और नोट करने वाली होती है. इट इज अ रिमेंबर या नोटिस दिस पॉइंट कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बट नेक्स्ट स्टेप मीन्स बी एंड सी आर बिलोंग्स टू आर नॉट फाउंड. हमको वो चीज़ मिली रही नॉट फाउंड इन द रिलेशन मीन्स ए और बी तो मिल गया लेकिन बी और सी से कोई भी दूसरा रिलेशन नॉट स्टार्ट ही नहीं हो रहा है. तो उस तरीके के रिलेशन को भी हम ट्रांजिटिव रिलेशन ही कहते बिकॉज इफ वी हैव ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट नेक्स्ट relation is not found. If the relation starting from the B is not found, so that is called, this type of relation is also called the transitive relation. Next is equivalent relation. Equivalent relation, if all the relation is clearly following the rules of symmetric, reflexive and transitive relation, that we can say the all its relation is called the equivalent relation. So firstly we will discuss, it is a define, we will convert it in the form of example, then we will understand it better, because in a mathematics you cannot find out simply the define. Now we will check. I have write down the four example are there. 4 part relation, different types of relation, 5 relation are there. You have write down it. Firstly we will check that all 5 relation, that is a symmetric, that is a reflexive, that is a transitive and equivalence also. So we have given a set A, the element are 1 2 3 and R belongs to relation between A and B, means and A and B belongs to A, means both the element A and B belongs to A. इसमें इसी के एलिमेंट है ये A और B. एक रिलेशन हमसे A और B का बनाया जो आपने सबको दिखाई दे रहा है इधर. दिस इज दिस ये पर्टिकुलर हमारे पास 5 तरीके के. सब फर्स्टली वी विल चेक द रिफ्लेक्सिव. फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव कमीज हमने क्या बताया कि A बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू A. इट मीन्स A बिलोंग्स टू A is belongs to here, A belongs to A. A belongs to A means we will take the A element A1, 2 here, 3. It means the condition is for A, all B, C, all the elements are followed. So it is the reflexive R. Yes, ये कंडीशन हमारी रिफ्लेक्सिव की होगी बिकॉज द एलिमेंट्स इज रिपीटेड इटसेल्फ 1 1 2 2 3 3 नो सो ऑन. बट फॉर वी नाउ वी आर चेकिंग हियर फॉर द रिलेशन between this type of relation, reflexive relation, we will find out here. Second, this not 1 is here, 2 is here, but not 3 not 3 so it means here condition means all A, all means 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 will be able या will be present in the relation. ये सारे कंडीशन इसका भी सेम ये सारे रिलेशन में होना चाहिए तभी जाके वो रिफ्लेक्सिव होगा. तो यहाँ पे हियर 1 1 तो है 2 2 है बट 3 3 नहीं है. तो इट मीन्स हियर इट इज नॉट द रिफ्लेक्सिव. No reflection. Clear? I have crossed it. For third, 1 1 is there, 2 2 is not here, 3 3 is not here. So it means it is also not livable. No relation. ठीक है.
Second, now the third condition is, for third is no, fourth 1 1 2 2 3 3. It means the property of reflexive A comma A belongs to R. All properties are followed here. Then it is a yes. Yes. Clear? Next, 1 1 is here, 2 2 here, 3 3 here. So no problem. It is also condition of reflexive is followed to yes. रिफ्लेक्सिव हमने बहुत इजी तरीके से पढ़ा। ये कंडीशन हमारे पास एलिमेंट जो है उसका सेम इमेज उसके पास होनी चाहिए, सेम वही रिपीट होना चाहिए वर्ड। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ऑन ऑल एलिमेंट्स, नॉट फॉर पर्टिकुलर वन बट ऑल एलिमेंट्स। 1 1 2 2 3 3 yes, 1 1 2 2 no, because 3 3 is not here. A condition you can read here, 1 1 you write down here, 1 1 belongs to 1 1 2 2 3 3 belongs to R. Then you can set this here 1 1 2 2 yes simply, but 3 3 not belongs to R. Similarly here 1 1 belongs to R but 2 2 and 3 3 are not belongs to R. So it is not the reflexive. Next, 1 1 2 2 and 3 3 belongs to R. Then you can say it is a reflexive. Last sentence, 1 1 2 2 3 3 belongs to R. So it is a reflexive relation. क्लियर हो गया? पहला फर्स्ट आपको सबको समझ में आ गया होगा कि जिसमें जो भी एलिमेंट है अगर उसका डबलेट नहीं है तो इट मीन्स इट इज नॉट अ रिलेशन, यस रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर आवर चेकिंग फॉर द सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर चेकिंग द सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर चेकिंग सिमेट्रिक रिलेशन, हाउ कैन वी चेक? If we will take the two element A and B belongs to R, then it is compulsory that B belongs to A is equal to R. So check it here. We will not check here because it is a condition is followed, but not. We will check from next step. यहाँ से check करेंगे हम इसको। 1 2 1 2 1 and 2 belongs to R, but 2 and 1 is not belongs to R. So it means we can write it belongs to R, but 2 comma 1 not belongs to R. Condition is not followed for the symmetry, so it means it is no symmetry. Second, follow the condition for the second. Here this type of condition we will not check, only check here 1 2 2 1 सेम है। देखो 1 2 मिल रहा तो 2 1 नहीं मिल रहा, वही कंडीशन हमारे पास सिमेट्री की है। इट मीन्स 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 1 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? थर्ड, 1 1 2 is belong here but not 1 2 belongs to R but 2 is not belongs to R, not belongs to R here, not belongs to R। यहाँ पर ये तो है belongs to, यहाँ पर बिलोंग्स टू नॉट आर कर रहा है, यहाँ पर भी लिखा है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे देखो it belongs to R कर रहा है, यहाँ पे बिलोंग्स टू नॉट आर, इट मीन्स इट इज नॉट द सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, इफ यस इट इज अ सिमेट्रिक तो वी विल चेक द ऑल एलिमेंट्स, बट
for it is not the symmetric, we will check only one elements. हम वन एलिमेंट्स को चेक करके भी पता कर सकते हैं, हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ही एलिमेंट का नेम मिल रहा है उसका रेसिप्रोकल, तो हम उसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट द सिमेट्रिक। बट इन केस ऑफ ट्रू वी विल चेक ऑल द एलिमेंट्स। फॉर थर्ड, इसके लिए ये तो सिमेट्रिक हो गई हो, जो इस तरीके का हमारे पास कंडीशन होती है ये, क्योंकि इसमें ऑलरेडी है दिस टाइप ऑफ प्रोसेस में सिमेट्रिक ऑलरेडी ही होता है, इसको चेक करने के लिए बट इज आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं इसको, और ये इसमें सारी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। इसी हो गया सिमेट्रिक प्लस। नेक्स्ट थर्ड फॉर 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 एंड 3 1, तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो द सिमेट्रिक। देखो यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने बोला कि आपको चेक करना नहीं है, ओनली चेकिंग हियर 1 2 है 2 1 है 1 3 है 3 1 है। तो इसको लिखते कैसे लिखते 1 2 बिलोंग्स टू R, देन 2 1 बिलोंग्स टू R, सेकेंड 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 1 बिलोंग्स टू R। Condition are follow for the symmetric, if A B belongs to R, then B A belongs to R. Condition are follow, then we can say it is symmetric. Okay, condition. Here we will discuss about the reflexive and symmetric. If the number is doublet in the relation, then we can say it is a reflexive. If its reciprocal या reverse you can say, then AB belongs to R, then BA belongs to R, that is called symmetric relation. Fourth part we have done, checking for reflexive and symmetric. Now we will going on the next step for transitive. Reflexive and symmetric are very easy, but the third condition is not easy for this type of relation, transitive, because in the transitive relation, if A and B belongs to R, then BC belongs to R, AC belongs to R. It is a condition. So firstly we are checking for third relation कि it is transitive, yes या no, for third, starting from this point, because one by step we will clear and then we find out. तो देखो यहाँ पे पहले मैं इसको ले रहा हूँ, दिस टाइप ऑफ रिलेशन 1 2 1 2 बिलोंग्स टू R, क्लियर, ये तो चेक करना है। सेकेंड चेक, फिर 2 से जो स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड पॉइंट से जो स्टार्ट हो रहा है वो हो गया 2 3 बिलोंग्स टू R, 2 से 2 कैंसिल, अब हमारे पास क्या बचा, ओनली 1 and 3, तो 1 and 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, क्लियर। AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग्स टू R. It means this type of relation is called transitive relation. Yes. इस केस में हम इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। देखो जहाँ से हमने देखो ए बी लिया, तो बी जहाँ तक छोटा बी से देखते कि कौन सा नया रिलेशन स्टार्ट हो रहा है, तो देखो हमने ए बी लिया 1 and 2 को लेकर 2 से कौन सा ये हो रहा है, अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचा हमारा 1 and 3, वो भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तो वो है। अब पहला रिलेशन हमने ये लिया 1 2, फिर 2 3 इज अ प्रेजेंट हियर, एंड लास्टली 1 3 इट इज प्रेजेंट हियर। तो दैट इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर नाउ गोइंग ऑन द सेकेंड पार्ट, जजमेंट, नो चेक हियर, ओनली चेक 2, तो 1 2 is present here. Now starting from 2
2 से स्टार्ट करा हमने, इसके जो एंडिंग जो सेकंड एलिमेंट है ना वो उसका सेकंड एलिमेंट कहाँ जाके फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है उससे चेक करते हैं। तो इट मीन्स 2,1 बिलोंग्स टू R स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 1,1 बिलोंग्स टू R। तो इट इज ऑल्सो द ट्रांजिटिव, इट इज अ ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? मैंने बोला इनको चेक हमने करना है, बाद में आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टार्टिंग वी विल नॉट चेक फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिलेशन, ओनली चेक फॉर द नेक्स्ट रिलेशन वन बाय वन। क्लियर? तो आई विल चेक फॉर दिस रिलेशन टू 1 to A B B C and A C A 1,1 already first step, second step, and now we will find out the third step. तो then this relation also the transitive relation. क्लियर हो गया ना? पहले हम कोई भी इनको छोड़ के कोई एक रिलेशन ले लेते हैं, उसमें जो पहला एलिमेंट होता है और दूसरा एलिमेंट उसको चेक कर देते हैं, उसको ए बी मान लेते हैं, फिर जो दूसरा एलिमेंट है उसको देखते हैं वो रिलेशन में कहाँ पहला एलिमेंट बन रहा है। तो देखो यहाँ पर बन रहा है पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब इन दोनों एलिमेंट करके हमारे पास 1 और ए और सी बच गया, 1 और 1 वो रिलेशन ऑलरेडी यहाँ पे है। तो दैट इज कॉल्ड इट द ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड नाउ वी विल गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस टाइप ऑफ रिलेशन। फिफ्थ, डॉट चेक है, यहाँ से चेक कर देखो 1,2 बिलोंग्स टू R, 2 से स्टार्ट हो रहा है, यस 2,1 बिलोंग्स टू R एंड थर्ड 1,1 ये भी बिलोंग्स टू R। इफ वी विल चेक हियर तो इट मीन्स इट इज अ ट्रांजिटिव, बट नो मैनी स्टूडेंट हैड मिस्टेक दियर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं इस चीज़ को, वो फिर दूसरे को चेक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको चेक कर देखें 1,3 बिलोंग्स टू R, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3,1 बिलोंग्स टू R और फिर लास्ट में 3 ए सी क्या हमारे पास 1,1 ये भी बिलोंग्स टू R। इफ यू विल चेक द 2 कंडीशन, तो फ्रॉम 2 कंडीशन वी हैव फाइंड आउट हियर कि इट इज द रिलेशन ऑफ ट्रांजिटिव, बट नो इट इज रॉन्ग, हियर इट इज रॉन्ग। बहुत सारे बच्चे वहाँ जाके इसको कन्फ्यूज करते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आने के बाद उसको डायरेक्टली लिख देते कि हाँ सर यस इट इज़ अ ट्रांजिटिव, बट हाउ कैन बी पॉसिबल। हमने बोला कि अभी ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए हमको सारे एलिमेंट को जो ये छोड़ के बाकी एलिमेंट को हमको चेक करना होता है कि औरों का भी ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, मतलब 2 को तो चेक करते हैं, लेकिन देखो इस एलिमेंट को तो हमने चेक कर दिया, बट ये 2, 1 सीक्वेंस में चेक करो। देखो यहीं पर इवेंट कर देता हूँ इसको, ये तो हो गया। ये 2 को चेक करने के बाद तो ये लग रहा है कि ट्रांजिटिव है, बट अगर हम इसको चेक करेंगे तो देखो ये ट्रांजिटिव है या नहीं, क्योंकि चेक करने के लिए अगर हमारे पास एक भी कंडीशन फॉलो, एक भी एलिमेंट्स की कंडीशन फॉलो नहीं करता तो इट मीन्स इट इज़ नॉट द ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी हमने 2 रिलेशन करी, उसमें तो लगा कि ये ठीक है ट्रांजिटिव है, लेकिन हमने इसको चेक करा देखो, चेक करते हैं 2,1 बिलोंग्स टू R, पहला कंडीशन 1 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो क्या बचा 1,3 बिलोंग्स टू, बट दूसरा कंडीशन नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया 2 और 3, बट 2 and 3 आर नॉट बिलोंग्स टू द R। यहाँ पर इस रिलेशन में 2 और 3 कहीं पर भी नहीं है। इट मीन्स 2 and 3 आर नॉट बिलोंग्स टू द R, इट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। 2 कंडीशन तो फॉलो करी, लेकिन अगर हमने इस एलिमेंट को लिया, इसके 2 एलिमेंट लिए, तो इट इज़ नॉट फॉलो द कंडीशन ऑफ द ट्रांजिटिव, तो फॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये कंडीशन, इसीलिए
1 by 1 मैं इस क्वेश्चन को चलता था कि हमको इजीली 1 by 1 स्टेप हम इसके सॉल्व कर लें। यहाँ पर इजीली था, हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर भी इजी था, हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। मॉडिफिकेशन होने में हमारे पास देखें कि हमने दो चीज़ें तो हमारे पास सही थी, लेकिन हमने इसको कंडीशन को फॉलो करा तो ये चीज़ हमारे पास नहीं मिली। 2,3 इज नॉट द रिलेशन ऑफ दिस टाइप, नॉट द एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ रिलेशन, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट फॉलो द आर, तो वी कैन से द फिफ्थ रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गया यहाँ पर? इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ तो कोई बात नहीं, हमें चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ भी चेक करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी चेक करो 2, 3, ठीक है। यहाँ पर 3 से कोई है ही नहीं एलिमेंट, तो ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है, तो हमने इसको चेक कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन, अब कंडीशन आपकी बन गई है। अभी तक तो हम ये कंडीशन बता रहे थे यहाँ पे, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो करी, इसको चेक करा, इसको चेक करा, इसको चेक करा, इसको चेक करा, लेकिन 2 में चेक करने पर तो ये आंसर निकल गया था कि ट्रांजिटिव है। बट दिस केस में इट इज़ नॉट द ट्रांजिटिव बिकॉज वी हैव दो नॉट 2,3 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, लास्ट है आपके पास ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे स्पेशल कंडीशन लिखी है मैंने नोट, यहाँ पे इनको तो हमें चेक करना है। देखो 1,2 तो हमारे पास बिलोंग्स टू 1, ये कर रहा है, लेकिन 2 से जो एलिमेंट होता है वो कोई यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर रहा है। मतलब जिसका द एलिमेंट इज नॉट फाइंड आउट, द नेक्स्ट स्टेप मीन्स A, B बिलोंग्स टू R बट B, C इज नॉट फाइंड, हम फाइंड नहीं कर रहे। 2 से कोई एलिमेंट ऐसा नहीं कि जो बन रहा है, तो इट मीन्स दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर इस तरीके का हमको कंडीशन मिलती है तो वो भी क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 से कोई आगे, इनको छोड़िए तो है ऑलरेडी। यहाँ से नेक्स्ट जो हमने स्टेप देखना है वहाँ पर चेक करना है कि कोई 2 से कोई रिलेशन ऐसा है कि जिसकी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से हो रही है, नहीं। तो इट मीन्स इस कंडीशन में हमारे पास B, C नहीं मिलते, देन वी कैन से दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब लास्ट हियर it is an identity relation, and in an identity relation all the follow the rules and regulation, then we can say it is a symmetric relation also, transitive relation. Yes, तो कैसे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिट के हमने अलग से एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी। कहीं पे तो कंडीशन फॉलो कर देती है, कहीं पर हमको चेक करना होता है कि क्या हमारे पास ये कंडीशन सब में फॉलो कर रही है। इफ़ द कंडीशन विल बी फॉलो द ऑल रिलेशन देन वी कैन से इट इज अ ट्रांजिटिव। बट हमको चेक सब का करता है। कभी कभी लगता है कि हमारे पास 2 एलिमेंट तो बहुत ईजी सॉल्व हो गई, बस तीसरा चौथा हमारे पास पता ही नहीं ये होता है नहीं होता, तो हमको सब कुछ चेक करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब कंडीशन ऑल एलिमेंट्स के लिए आती है कि ट्रांजिटिव है तो सबको चेक करना पड़ता है। और नॉट सिमेट्रिक के लिए या फिर नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए या फिर नॉट ट्रांजिटिव के लिए वी विल चेक ओनली 1 एलिमेंट। अगर ये चेक नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। सेकेंड केस में ये मैंने नोट यहाँ भी लिखा हुआ है, ये हैव नोटेड इट, कि अगर आपके पास A B बिलोंग्स टू है बट द नेक्स्ट स्टेप B कोई स्टार्टिंग ही नहीं हो रहा कोई एलिमेंट या रिलेशन, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड बट ट्रांजिटिव रिलेशन। उसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं या इसको रिमाइंडर कर लो या इसको लर्न कर लो आप फिक्स कि उस तरीके के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ 1 क्वेश्चन आई थिंक तो एक्सरसाइज में भी है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते भी हैं एग्जाम में कि ट्रांजिटिव फाइंड करो। उसके बाद आता है आपका इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। इफ़ द रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल लिख लो इक्विवेलेंट रिलेशन का, इक्विवेलेंट रिलेशन एग्जाम्पल वही क्वेश्चन देता हूँ मैं सेम। दिस इज दिस टाइप ऑफ 3 AB बिलोंग्स टू R एंड AB बिलोंग्स टू A, ये रिलेशन, ओके, दिस टाइप ऑफ
Then if relation is 1 1, 2 2 and 3 3, in the previous class, nowadays we will find out it is a reflexive, yes, because 1 1 2. Symmetric, yes, because the identity relation, and identity relation will follow the all rules, all relation. Third is transitive also. If three conditions are followed, three relation form, then we can say this type of relation is called equivalent relation. समझ में आ गया सबको? अगर इक्विवेलेंट रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव भी करती है, रिलेशन को फाइंड आउट करता है, सिमेट्रिक को भी और ट्रांजिटिव को भी, उस तरीके के रिलेशन को ही हम क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाते हैं. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द सम function, about the function. Now for the next step we are going to the function. So this video we will some discussing about the function, not detail but some, what is the function, ornamental function with the diagram. In a board question, this type of question is coming for the relation. This is question the CBSE. Question is check reflexive, symmetric and transitive relation. For condition given A equal to 1 2 3 4 5 6 and relation R equal to if A B belongs to this such that B equal to A plus 1 in this type. It is a 4 marks question in the CBSE examination. Find out convention. So how can you find out? Firstly we will make the relation A equal to 1 put करेंगे, तो then B equal to 2. If 2 3, next 3 4, put the value of 1. A की वैल्यू रखेंगे, B के अपना पे निकलते हैं, A है ये B है. Next is 4 5 and next 5 6. If you will put the value of the 7 is not the element of the A. So then how can you follow following it? Then for checking reflexive में check करो easily. For reflexive देखो, no 1 1 2 2 3 3 not belongs to R, so it is not reflexive. Next, for symmetric how can we will change it? Then 1 2 to 1 not, checking for 1 2 belongs to R but 2 1 not belongs to R, so then we can say it is not symmetric. Next 1 2 2 3, 1 3 is not allowed. For the transitive relation, check it. For transitive 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R, but ये कटा 1 and 3 not belongs to R. ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, कोई भी चेक करने के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन बहुत ज़्यादा है, हम एक ही एलिमेंट को लेते हैं. इट मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो.
ट्रांजिटिव, क्लियर। तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक। इस तरीके के क्वेश्चन, इट इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये आता है करने। आपने फॉरन से पहले क्या करना, रिलेशन बनाने, रिलेशन में कंडीशन लगानी, डोमेन पूछेगा तो डोमेन बता देना। डोमेन क्या होगा इसकी, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 क्यों होंगे इसमें डोमेन। रेंज पूछेंगे, सेकेंड एलिमेंट 2 3 4 5 एंड 6, सेकेंड एलिमेंट रेंज। कोडोमेन की बात करूँगा तो इन कोडोमेन ऑल एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, these are the codomains. Codomains is all the elements of set B or set A, second set you can see. तो ये कोडोमेन होगा। अगर ये इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन में तो इस तरीके से इसको सॉल्व करें। नाउ लेट्स अगेन गोइंग ऑन द फंक्शन easily discussing some discussion and the other question we will do about the function in the next video, but simply today we are discussing about the function. Simply, what is the function? Function defined as it is a specific type of relation where जहाँ A two set two non-empty sets A and B, then the image of each element of set A should be in set B if f is a function A tends to be this type. फंक्शन डिफाइंड, इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन। ये भी क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिलेशन ही होता है। और इस रिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास 2 सेट होते हैं, 2 सेट A एंड B, देन द इमेज ऑफ ईच प्राइमरी नंबर सेट A शुड बी इन सेट B. फॉर एग्जाम्पल हियर वी विल डिस्कस अबाउट द सेट इफ वी हैव गिवन द 2 this type of set. This type of set element are A, B, C and D. Here 1 2 3 4 5 6. Mapping this and this. Mapping, it is a set A and it is a set B. Okay, 2 types of set. तो each element of condition क्या बोला, each element of set A image in the set B, तो condition will be followed. तो it means it is a function. This type of relation is called function and condition is there कि no element should be live here without image. No element live here should be without image. If this type of condition are followed, that is called it is a function. मतलब सिंपल ये देखो कि अगर हमारे पास A सेट है उसके सारे एलिमेंट की इमेज यहाँ मिल जाती है, यहाँ चूजा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सेट A हमारा पहला वाला है, यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट के यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इमेज मिलनी चाहिए, उसी को ही क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। अब मैं इसके डिफरेंस की बात करूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन। तो डिफरेंस ये डिफरेंस में ऐसे लिख देता हूँ, रिलेशन में क्या होता है, ये शेप में बनाना है इस तरह का सेट A B C D and E and here the next set is 1 2 3 4 5 6 7. Here set A and here set B. मैपिंग दिस का रिलेशन इससे है
इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे लगा, इसका रिलेशन इससे लगा। बट हियर द ई एलिमेंट आर लीव, इज लीव छूटा यहाँ पर, एमिट मतलब यहाँ पर रुका हुआ है ये एलिमेंट। तो इस तरीके को तो हम इसको क्या बोल देते हैं, रिलेशन, और इसको क्या बोल देते हैं, फंक्शन। बट डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन में no element should be live in the set A without image, but in a relation no problem if the each element, many student many element live in the set A but they have no any image in the set B, that is called relation। समझ में आ गया। रिलेशन, फंक्शन और रिलेशन में यही अंतर होता है कि फंक्शन में जो हमारा सेट पहला ए होता है उसमें यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। बट रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशन में कहीं भी उसकी इमेज यहाँ छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फंक्शन में ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि ये एलिमेंट का इमेज यहाँ होनी चाहिए, सभी एलिमेंट की। यहाँ पर रिलेशन में ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है। कंडीशन यहाँ पे एक अगर इमेज ना भी मिले तो नो प्रॉब्लम, बट इन केस ऑफ फंक्शन वी शुड बी image of each and every elements of set A should be in a set B. It is a function, and relation, no, it is not the condition. If the elements live in the set A, that is called no any problem, it is a relation. But here in the case of function, no element should be live here in the set A. So what is the difference? Because it is also relation, it is also relation, but it is a specific relation. No element should be live in the set A without image in the set B. Clear? Now we go going on the next part for this. ये तो क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर 4 देखो, इसकी इमेज यहाँ मिलनी चाहिए। कंडीशन रिलेशन कुछ भी बना हो बात की बात है, पहले हमें ये देखना है कि इसकी इमेज मिले, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, इसी को ही फंक्शन बोलते हैं। रिलेशन में छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैंने आपको दोनों को दिखा दिया। आप लिख भी सकते हो इसका रिलेशन, डिफरेंस भी लिख सकते हो। और मैं अभी एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि इन अ फंक्शन नो एलिमेंट लीव विदाउट इमेज इन सेट ए, बट इन अ रिलेशन नो प्रॉब्लम इफ एनी एलिमेंट लीव इन द सेट ए विदाउट इमेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ द रिलेशन, then the type of the function. Firstly, one directly we will solve here for types of function. First is one function. Yes, other name is injective. The name is injective function. Injective function. So what is the answer? We will give same image. Yet you can say the image of each element of set A should be a single image in set B. Then we can say it is one function. For example, show them means each element, the image should be single image of each other, that is called one function. For example, this here given this and this type A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Here this and this. Single image. Image means A2, B3 and C4. Next D5. Single image is there, so that is called. But
the one function. It is not the similarity and not the regularity, but it is difference each other. Yet you can say this type of function is not for clearly, but you can write this type of also. This type of function a b c d 1 2 3 4 5. This not from the cross, but image should be single. This set A and set B. This type of function is called what is one function. And for the question here we will find out that this type of problem, but for we will now we will not detail here, only introduction of the subject. But if we will solve the question of exercise 1.2, that time we will use this type of function and this type of condition. Simply आप यहाँ पे समझ लो कि वन फंक्शन क्या होता है कि किसी का एलिमेंट का सिंगल यहाँ पर इमेज बन रही है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. अब नेक्स्ट इज है ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन सेकेंड इज ऑन टू फंक्शन, and this is known as surjective function. Surjective function. Here, how can we write here? If the no element, if we have the given two non-empty set A and B, so no element B of set B without any preimage. अब ऑन टू का आपने बोला कि सर तो पढ़ लिया आपने, लेकिन बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. बट एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ फंक्शन में है A, B, C and D, and here we have condition 2, 3. This type of condition is here. It is a set A and it is a set B. This is a pre-image and it is a image. इसको हम pre-image and here image. Then this and this is going on in this type. Here no element leave, but here the two elements is the same image here. Two pre-image in the same image. Then we can say this type of function is called what? Onto function. No element leave here. In the case of onto, all elements are related to each other. But here onto means the two pre-image make a single image too. This type of function is called onto function. क्लियर हो गया नहीं? अगर यहाँ पर दो देखो, यहाँ पर पहला तो कंडीशन क्या होता है कि सेट बी में कोई भी इमेज का नहीं रहना चाहिए, इसकी इमेज किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए. इसमें यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो क्या हो जाए कि दो प्री इमेज की एक इमेज बन जाए, बट यहाँ पे एलिमेंट में नहीं छोड़ना चाहिए. कि हमने फंक्शन में क्या होता है वहाँ एलिमेंट छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन इस केस में ऑन टू फंक्शन में हमारे पास यहाँ ये भी किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए. इसका मतलब ये जो एलिमेंट है उसकी यहाँ पर प्री इमेज होनी चाहिए. बट वो कैसे आप पता है, इस तरीके के उसको बोलते हैं ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन. क्लियर हो गया? नाउ डिटेल
अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे जब हम इसके क्वेश्चन वगैरह करेंगे, इसकी डिटेल में फंक्शन कैसा होता है, fx1 ऑन टू, या कोई हमको फंक्शन दे रखा है उसको कैसे हम प्रूव करेंगे, ऑन टू है इन टू है, उसके लिए हमको बाद में पढ़ना पड़ेगा। अब ना फॉर सिंपली थर्ड केस में ऑन टू 1 1 एंड ऑन टू, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। इस तरीके के फंक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस तरीके के फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखो, इफ ईच एलिमेंट, वही सेट ए एंड बी गिवन सेट देते हैं आपको, नॉन एम्प्टी सेट। तो image of set A should be in set B is 1 1 and 1 1 and on to. It is usefully for example A, B, C, D and here 1 2 3 4, this type of function। आगे पीछे क्रॉस होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिंगल है। ये सेट A है एंड दियर इज अ सेट B। इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। इट मीन्स एंड फॉर द इनवर्स फंक्शन वी शुड बी दिस टाइप ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स भी करेंगे तो सेम हो जाएगा। देखो फंक्शन को अगर हम चेंज भी करेंगे तो भी वो सेम रहेगा ही, चेंज नहीं होगा। देखो इस तरीके का फंक्शन, ईच का क्या है, सिंगल है 1 1 और ऑन टू भी है, मतलब यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं छूट रखा है। तो इट मीन्स दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ये इसको हम कहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इस तरह का फंक्शन, क्योंकि रिवर्स में भी हमको यही, जब हम इनवर्स फंक्शन निकालेंगे वहाँ पे ये चीज़ें हमको बहुत जरूरी चाहिए होती है। और इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए हमको जो फंक्शन चाहिए होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन ही चाहिए होता है, क्योंकि हम इसका इनवर्स भी करेंगे तो भी हमारे पास, अगर मैं इसका इनवर्स करता हूँ देखो, तो इनवर्स करने में भी क्या हो रहा है, देखो उल्टा करेंगे तो मैं देखूँगा 1 2 3 4 और यहाँ में भी क्या हो जाएगा A B C D, ये सेट B हो जाएगा और ये सेट E हो जाएगा। तो देखो यहाँ सेट करने से वही बन गई। इस तरीके का ये भी कंडीशन हो गया हमारे पास। मीन्स अगर हम इसका इन्वर्स पे करते हैं तब भी ये क्या होता है, फंक्शन ही होता है। तो इसका इन्वर्स हम तभी निकालेंगे जब हमारे पास जो फंक्शन होगा वो ऑन टू और क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट्स टुडे इट इज आवर सेकेंड टॉपिक अबाउट द फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ओनली जनरल फॉर्म, नॉट फॉर डिटेल, because in next video if we will solve of this type of question then we will understand it's better. But simply if here we will only judge that this type of function is a 1 1 function, on to function, it is a relation and it is a function 1 1 2 function, on to function, only we judges here कि how can we find out कि the relation is a function and other, difference between the function and relation. I again repeated it, if the no element should be live in the set A without image, that is called function, and if the element live in the set A without image, then that is called relation. I will understood about it, yet I have understood. You have also understood about my explanation in before. And now next video we will discuss about how can we find out the question of fog, FOG, this type of question, fog, golf,
composition of function and other inverse permutation, and that's all. Thank you and have a nice day, and watch my next video for detail of the function in the relation and function chapter of 12. Thank you and have a nice day.